Okay. So, the Union Budget 2023. So again, the focus would be on making you understand, what it is, what the statement is all about, and to prepare you or to basically, give you that basic ingredient to understand the budget for the rest of your life. All right. So it took me quite a lot of readings and deep diving, understanding to actually decode it when I started doing it some 15 years back or 20 years back, right? So I want you guys to understand it much earlier so that you could actually decode while you're there in a B school, you pass out, you're there in the industry, you're already working, making some money, doing investments. So you should be able to understand. You should be able to understand 1st of February of that particular year when the budget is speech is delivered in the parliament. So whosoever the finance minister would be at that point in time, what he or she is trying to say, right? What does it impact? What impact does it have, right? So let me try and decode that, right? So this year's budget, if I talk about the background, so 2024, we have the general elections lined up. Yes or no? Okay. So, जो budget expected था a year prior to the general election, right? That's 2023. So normally what we have seen in the past, the budget is normally a populist budget. Any government would want to come back to the power. And how would they come back to the power? By opening the coffers, not their own coffers, but the people's money, the government money, and giving direct benefit to a specified class, the farmers, the taxpayers, or the small and marginal farmers, right? People who are treated as a vote bank, and they would do a vote bank politics. They would waive the loans of the farmers, right? They would do a direct bank transfers into the accounts of laborers, marginal laborers, and people who are living below the poverty line or otherwise, right? उनका तो कुछ नहीं जा रहा है. क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा. खर्चा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? Fiscal deficit बढ़ जाएगा. Fiscal deficit is always measured as a percentage of GDP. We have already discussed GDP in detail, right? You already know what GDP is. GDP हम nominal में देखते हैं, हम purchasing power parity में देखते हैं. But यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो nominal की बात कर रहे हैं, converted into rupees at a rate of 82 or 82.5, right? So what this whole thing is all about in the Indian rupees is what we need to understand. How does it impact is what we need to understand. And there's a PDF with me which is also shared with you on the group. मैं इसको ये mark कर दूँगा, so you can relook at it, right? So the objective is not to make you an expert, because that is of course not possible. But the objective is to make you understand the larger aspects of the budget. And while you are sitting in an interview or while you are doing a WAT, you are writing something, you are precise and you are able to make sense. So in an interview, if someone asks you at the end of the day, what is your view with respect to Union Budget 2023? So your answer has to be a very, very crisp and precise 30-second, 40-second answer. When you answer that question and the interviewer further probes you, what does it mean? What does this mean? When you are saying this, what is the impact of it? You are able to explain. So you are able to answer the cross questions that happens. And if that happens, you are certain to crack that particular interview that you would be sitting for. So that is what the objective is. छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सुनी होंगी, जो highlights group पे share भी हुई हैं. A lot of people have shared Insta post as well. A lot of things are there. So they are all just they're there in bits and pieces. But the larger aspect of it is what I'm gonna take up today. Superficial. Yes. Okay. Now budget. जैसे आपका a lot of salaried classes, they create their घर का budget. Yes or no? ये income है, ये हमारा घर का budget है, इस चीज़ में हमें इतना खर्चा करना है, right? And there is a miscellaneous thing that is kept, and this is the kind of a saving that has to happen, right? So वो तो एक छोटा सा household हो गया, micro हो गया. जब हम macro की बात करते हैं, पूरी country की बात करते हैं, so we call it a union budget. So there is a state budget as well. There is a union budget. So this budget that we are talking about is a union budget. So ये budget जो आया,
ये जो बजट की जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं जो हम बोल रहे हैं 283 लाख करोड़, राइट, और 45 लाख करोड़, और व्हाटएवर दीस फिगर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कौन से साल के लिए? 23 to 24 फाइनेंशियल ईयर चलता है हिंदुस्तान में 1st of April to 31st of March, राइट। तो जो पिछले साल पहले जो बजट आता था वो आता था 1st of March और लास्ट डे ऑफ February, राइट। बट व्हाट मोदी गवर्नमेंट डिड, दे प्रीपोन्ड इट बाय अ मंथ सो दैट द फाइनेंस बिल, right, gets discussed in the parliament and becomes an act much before 1st of April, and all the necessary documents, all the necessary blueprints, all the necessary returns and everything is in place by the start of the year, that is 1st of April, right, so that there is more efficiency, there's a clarity, right। आपने लॉ पास नहीं करा इन तक, पार्लियामेंट में लोअर अपर हाउसेज में उसका डिस्कशन चल रहा है, नया साल शुरू हो गया है, उसके बाद वो क्लोजर हो रहा है, सो व्हाई विल बिजनेसेस इन्वेस्ट? They're not sure, they're not very clear about it, right? So that's the reason why they preponed the budget by a month, and now the budget comes on 1st of February, and everything would be settled and this bill will become an act. This is Finance Bill of 2023. It will become an act, right, pretty soon in the next 15 to 20 days as the parliamentary session goes on, right? Okay, so now the budget that we are talking about, so these figures is visible at the back? No, not really. Okay, no worries. I'll just be taking it as a reference point, but I'll try and explain everything that I'm doing here is. So इसमें basically ये budget financials हैं और उसमें चार lines हैं, चार verticals हैं. So one is 21-22. So what is 21-22? जो जा चुका. तो उसका क्या होगा? जब 21-22 31 मार्च 2022 बंद हो चुका है, तो वो क्या है? वो एक्चुअल है, रिवाइज्ड है, क्या है? एक्चुअल है, हिस्टोरिकल वैल्यू, बट एक्चुअल है, वो खत्म हो चुका है. यस और नो? बट द ईयर 22-23 अभी खत्म हो गया, चल रहा है. अभी कितने महीने, मतलब कितने दिन है अभी? ऑलमोस्ट 2 months है. 1st of February से 31st of March. तो लास्ट ईयर जो बजट आया था वो इस साल का बजट था. तो विच वॉज बजटरी एस्टिमेट, which is written as BE, budgetary estimate. तो लास्ट ईयर का जो इस बार बजट आया वो 23-24 का आया. तो बजटरी एस्टिमेट है कि ऐसा होने वाला है, बट एग्जैक्टली हो सकता है खर्चा ऊपर नीचे हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए वेयर मोर मनी इज बीइंग रिक्वायर्ड, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हो जाए, सो वेयर द एंटायर इकोनॉमिक्स गेट डीरेल्ड. यस और नो? सो देयर इज अ बजटरी एस्टिमेट. बट ये बजटरी एस्टिमेट था लास्ट ईयर जब बजट में आया इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, बट ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड, there is a revised estimate. There's a revised estimate. It has been revised. Why? Because the 10 months have already gone past, and they've seen how the capital projects or whatever infrastructure projects, healthcare, education, everything has been utilized. So there's a revised estimate. तो last year का जो budget था, last year का budget जो था इस साल के लिए वो था 39 lakh करोड़ और मोटा मोटा 40 lakh करोड़. Now let me put things in perspective. Right. What is the economy? What is the size of the economy of India? What is the GDP of India? $3.4 trillion. $3.4 trillion. तो अगर मैं इसको 82 या 82.5 से मल्टीप्लाई करूं, 25. अगर मैं इसको 82 या 82.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ रहा है ये? 25. कितना आ रहा है? No, this will come out to be 2,75,000 करोड़. 2,75,000 करोड़. I mean, of course, it could be 2,74,000 something. 2,75,000 नहीं, 275 लाख करोड़. 275 लाख करोड़. That's right. That's absolutely right. 275 lakh crore. Thanks, Vijay. So the size of the economy of India is 275 lakh crore. That's the GDP. Right? But ये क्या सारा का सारा जो इकोनॉमी है क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? नहीं. तो जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है, इट्स 275 लाख करोड़. ये इनका कंट्रोल कितने में है? तो लास्ट ईयर द बजट वाज 40 लाख करोड़. Right, the revised estimate is 41 lakh crore. I'm not getting into decimals because this will confuse you. And the budget of this particular year is 45 lakh crore. 45 lakh crore. Yes or no? So the total spending will be 45 lakh crore. So in a developing nation, right? The expenditure is more than the revenue, right? Because they would want to spend more for development schemes and stuff, right? So the budget, तो कैसे बजट तैयार होता है? पहले एक्सपेंडिचर तैयार होता है, फिर उसका रेवेन्यू सेट होता है कि कहाँ से पैसा आएगा.
और जो बैलेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, उसमें उसे क्या करते हैं, बोरो करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी fiscal deficit, which is called the fiscal deficit, and it has to be well within the limit. ऐसा नहीं है कि भाई मैंने गवर्नमेंट ने बोला ये 41 लाख करोड़ या 39 लाख करोड़ से बढ़ा के आप इसे सीधा 100 लाख करोड़ कर दो, ठीक है, रेवेन्यू चाहे जितना मर्जी है, रेवेन्यू चाहे जितना मर्जी है, और डेफिसिट हो गया बहुत ज्यादा 12% 13% ऑफ द जीडीपी, और बोरो कर लो, बिकॉज इफ दैट हैपेंस द इकोनॉमी विल कोलैप्स. व्हाई? बिकॉज आमदनी 98 है, खर्चा 2 रुपया है, 3 रुपया है, 4 रुपया है, and you will not be able to repay the loans and the interest. You will not be able to service the interest. So fiscal prudence जो कि fiscal deficit के लिए हम यूज करते हैं. So fiscal deficit has to be well within limit, and that is measured against the GDP. So basically जो हमारा deficit है, fiscal deficit है, This is with respect to GDP, और एक पर्टिकुलर परसेंटेज आ जाती है. Yes or no? अब guys, फिस्कल डेफिसिट चेक में कैसे रहेगा? या तो ये कम है, yes or no? या तो ये वैल्यू कम है, या फिर ये बढ़ जाए, या तो डिनोमिनेटर बढ़ जाए या न्यूमरेटर कम हो जाए, राइट? सो अब इट्स अ वेरी catch-22 काइंड ऑफ अ सिचुएशन. जितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, अदर डेवलपमेंट स्कीम, राइट, जल जीवन मिशन, there's so many things that we are going to talk about, right? So जितना पैसा स्पेंड करेगी उतना लास्ट माइल तक पैसा जाएगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उससे ये बढ़ेगा. तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा. अगर ये कम हो गया तो जीडीपी भी कम ग्रो होगी. सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स, राइट? अब या Have a seat. Yeah, guys at the back, shift करो ना फटाफट. ये इसको अंदर जाने दो, शिफ्ट करो, अंदर जाने दो. Okay. Now, the size of the Indian economy is 275 lakh crore. तो पहली चीज, they say what is the estimated growth of the economy from here. We are not talking about $3.4 trillion. We are not talking about $1 trillion. We are talking about the economy of India in rupees. Right, in Indian rupees. So it is expected, the FM Nirmala Sitharaman says, we are expected to grow at a rate of 10.5%, and next year our GDP will be 301 lakh crore. कितना? 301 lakh crore. The GDP of India would be 301 lakh crore. Yeah. अब इसमें certainly 301 something होगा, but then मोटा आपको what do you need to remember? The GDP in India of India for the year 23-24 would be 301 lakh crore. Now this is 2023-24, right? 2023-24. This is total receipts and this is total expenditure. So total expenditure, that is the size of the budget, is 45 lakh crore. This is 45 lakh crore. So what is the size of the budget? 45 lakh crore. So what Nirmala Sitharaman would be doing, would have done, she would have explained कि 45 lakh crore हम कैसे खर्च करेंगे और ये 45 लाख करोड़ कहाँ से आए. तो पूरी की पूरी बजट स्पीच इसी के आजू बाजू होगी. या वो बोलेगी पिछले 10 साल हमने क्या किया, यूपीए के समय क्या था और पिछले 10 साल हमने क्या किया, या 5 साल पहले कितना आउटले था, आज की डेट में कितना आउटले था, राइट? डिफेंस को पहले हम कितना देते थे, आज की डेट में कितना है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम पहले कितना था, अब कितना है, राइट? कितने जनधन योजना में बैंक अकाउंट्स खुल गए, कितने उज्ज्वला योजना में हमने सिलेंडर्स दे दिए, कितने हमने व्हाटएवर स्कीम्स, व्हाटएवर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर, उसमें हमने क्या क्या बेनिफिट्स कर दिए. सो इफ यू हियर द स्पीच और if you okay, so if you would hear the speech or read the statement, so this is what you would find. So this 45 lakh crore, दो अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल. राइट, रेवेन्यू हो गया मतलब जो टैक्सेस से पैसा आएगा. दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा टैक्स कौन सा हो गया, जीएसटी. डायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इनकम टैक्स. यस और नो? सो दिस समथिंग दैट यू वेरी मच क्लियर. सो वो कह रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट
से जो हमारा जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी, ये जो 45 लाख करोड़ है, उसमें से जो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी, विच इज फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो टैक्स रेवेन्यू वो कह रहे हैं 23 लाख करोड़ विल कम फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू. 23 लाख करोड़ विल कम फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू. तो अभी हम 45 लाख करोड़ गवर्नमेंट को खर्च करने हैं, उसमें से 23 लाख कहां से आ जाएंगे? 23 लाख करोड़ कहां से आ जाएंगे? टैक्स रेवेन्यू से. पूरे जीडीपी ऑफ इंडिया कितना है? 275 लाख करोड़. नॉट 275 I mean 2.75 lakh crore, it is 275 lakh crore. And the size of the budget is 45 lakh crores. 45 lakh crores, right? All of this is in INR, Indian rupees. Yes or no? So 23 lakh 23 lakh crore will come from tax revenue net to center. What do you mean by net to center? GST जो हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो स्टेट का भी कर रहे हैं और सेंटर का भी कर रहे हैं. तो तब स्टेट का शेयर दे देंगे, उसमें से जो बचेगा दैट इज नेट टू सेंटर. अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कहां से आएगा? देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द मनी, एंड दैट इज बेसिकली 3 लाख करोड़. दैट इज 3 लाख करोड़. सो कुल मिला के हो जाएगा 26 लाख करोड़ विल कम फ्रॉम 26 lakh crore will come from the taxes, from tax and non-tax revenue. अब है capital receipts. Now what is the difference between revenue and capital? रिकरिंग नहीं होता कैपिटल बट टाइम. Revenue expenditure हमारा कैपिटल करें लॉन्चर का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? To build the furniture, to build the classrooms. When we buy an AC, it's a capital expenditure because उसकी लाइफ लंबी है, हमें लंबे समय तक वो. But revenue expenditure क्या है? The material that we give you. Right, the markers, the cost of the markers, the salaries that we pay, that is a revenue expenditure, right? जो हमें revenue को support करने के लिए, services देने के लिए directly हमें करना है. So capital expenditure is basically, capital receipt would be by selling their investments into a particular company. तो अगर what do they do if they disinvest? So वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो कैपिटल रेवेन्यू होगा, कैपिटल रेवेन्यू होगा, कैपिटल रिसीप्ट्स होंगे. यस और नो? सो रिकवरीज ऑफ लोन, जो इन्होंने लोन दिए हुए उसकी रिकवरी दैट इज हार्डली 0.230, राइट? बोरोइंग्स, अदर रिसीप्ट्स इज 0.610, व्हिच इज अ वेरी लेस फिगर. बट जो सबसे बड़ी फिगर है वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, एंड व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 17 लाख करोड़. 17 लाख करोड़. इसका मतलब ये 45 लाख करोड़ को खर्च करने के लिए 23 लाख करोड़ तो कहां से आ गए? टैक्सेस. बचा कितना? 22 में से और 5 लाख करोड़ बाकी सब चीजों से आ गए. ये सुनो, और बाकी 17 लाख करोड़ क्या हो गया? 17 लाख करोड़ क्या हो गया? ये शॉर्टफॉल है जो कि क्या करेंगे? बोरो करेंगे. बोरो कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, पब्लिक से बोरो करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, या अलग अलग तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी और वहां से पब्लिक से पैसा लेगी, या फिर IMF से पैसा लेगी, या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगी, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेगी उसको फंड करने के लिए. एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेगी, राइट, या कहीं और से पैसा लेगी. यस और नो? तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना हो गया? 17 लाख करोड़. दिस इज 17.868. तो 17.868 राइट लाख करोड़. और हमारी जीडीपी अगले साल कितनी होगी? 301 लाख करोड़. 301 लाख करोड़. सो हमारा ये, तब हम इसे डिवाइड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 5.9%. तो फिस्कल डेफिसिट विल बी 5.9% ऑफ जीडीपी व्हेन व्हिच ईयर? Next year. Yes or no? So this is fiscal prudence. Why this is fiscal prudence? कि भाई इलेक्शन का साल है अगले साल, सो नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि वो गुडीज देंगे, फ्री बाइज देंगे, लोन्स को माफ कर देंगे. अगर वो इसमें 1 लाख करोड़ का खर्चा और ऐड कर देते, भाई हमने लोन माफ कर दिए, हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स कर दिए, हमने कुछ और बेनिफिट दे दिया टू अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल, टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल. गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है. किसका पैसा जा रहा है? बोरो और कर लेंगे, बट वो फिजिकल प्रूडेंस नहीं होगी. सो कंसिडरिंग दैट बिफोर पैंडेमिक our FD fiscal deficit as a percentage of GDP was around 3.5%, right? But because during the pandemic सब चीजें
सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई. लॉट ऑफ पैकेजेस, लॉट ऑफ थिंग्स वर गिवन टू दी पीपल एट लार्ज, राइट. एमएसएमई को सपोर्ट किया, बिजनेस को सपोर्ट किया, लोगों को डायरेक्ट वो दिया. 30,000-35,000 करोड़ की वैक्सीन लगवा दी गवर्नमेंट ने, पूरा का पूरा खर्चा बियर किया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो करते करते हमारा 3.5 या 3.7 से फिस्कल डेफिसिट कहाँ पहुंच गया? 6.4. कहाँ पहुंच गया? 6.4. इनफैक्ट 6.4 भी नहीं. इट 2021-22 our fiscal deficit was 6.7%. 6.7%. So, which last year during the budget it was expected to be 6.4%, and they actually achieved. Revised estimate is also 6.4%, and next year they are saying they would want to close it to 5.9%. So, ये बहुत ही highly unlikely है in a year prior to the election. अब जब बीजेपी गवर्नमेंट, दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट विल बी प्रेजेंटिंग द बजट नेक्स्ट ईयर, Interim होगा. that will be interim, and that will be more of economic survey that they will be presenting, and they will be talking about the revised estimate. They will not be talking about the next year. तो जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, ये सुनो, मई में जब गवर्नमेंट आ जाएगी, they will be coming up with their interim budget, another interim budget, which will be a final budget for the next particular year. जुलाई में होगा, जून में, मतलब जून के एंड में, और जुलाई फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट जुलाई होगा. वो एक साल होगा, एक साल होगा, मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक होगा, राइट. और तब तक चीजें सेम रहेंगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो व्हाट इज योर व्यू अबाउट द बजट? सो कंसिडरिंग it is a year prior to the election year of 2024, it was expected that the budget would give away a lot of free buys, lot of subsidies, waiver of loans. It did not happen. They ticked the right boxes, and they kept the fiscal deficit within check, and from 6.4% in the current year, they expected to come down, bring it down to 5.9%. And in fact, Sitharaman went little far and said, in next 3 years, we will bring it down to 5%. तो जनता हंसने लगी. 4.5%. जनता हंसने लगी. पहले आ तो जाओ पावर में. तो वो कह रही इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम तो हिलने वाले हैं नहीं, आएंगे तो हम ही, तो हम इसे अगले 3 साल में 4.5% लेकर आ जाएंगे. That's the kind of a confidence that she talked about, and she was, you know, really applauded the kind of a confidence, because you know, अभी पहले पावर में तो आओ, अभी 3 साल आगे की बात क्यों कर रहे हो तुम? हमारी सरकार ही नहीं हुई तो क्या होगा? But that's the statement she made, that we'll bring it to 4.5%. Guys, have you written the statement? कि लिखा या नहीं लिखा? Yes sir. समझ में आ गया फिस्कल डेफिसिट जीवन भर के लिए? Yes or no? Last mile out there, are we connected? Right, okay. तो बताओ ये 5.9% अगले साल या इस साल का 6.4% किसका है? क्या है? Fiscal deficit as a percentage of the GDP. So the current year 22-23, the deficit was expected to be 16.612 lakh crore, but ये actually 17.5 lakh crore हो गया, और GDP इस समय कितनी है? 275. तो 17.5 lakh crore upon 275 lakh crore. So it is 6.4%. ये कौन सा साल है? 2022, the current financial year. और next year कितना हो जाएगा ये? 5.9. You understand this? सर वो पूछे इंटरव्यू में करंट फिस्कल डेफिसिट क्या, तो 6.4 बोले. So this year the fiscal deficit is expected to be 6.4%, or it is 6.4%, right? And next year it is pegged to bring it down to 5.9%. ठीक है? कहाँ पर? नहीं वहाँ नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगी, मेरे लैपटॉप के पीछे आ जाएगी, गिरा देंगे यहाँ पे. यहीं बैठ. अभी तो पूछा उसने जानने के लिए कि आऊँ नहीं आऊँ, हर क्वेश्चन का जवाब ये थोड़ी आ जा. हाँ, you want to interchange the seats? Say yes or no? So say ना. हाँ, अरे ऐसे आ जाना भाई, बैठा भी तो उधर डायरेक्शन करके है, घुमा लेना भाई. ओके गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर में ऑन रेवेन्यू अकाउंट इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो देखो अब प्रॉब्लम देखो,
लोन तो लिए जा रहे हैं, हाँ जी। राइट, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, लोन लिए जा रहे हैं। इस साल भी हम 17.5 लाख करोड़ का लोन लेंगे, लेकिन उसमें से 10,80,000 करोड़, 10.8, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ will go to interest payments. Will go to interest payments. So we have been already in the deficit. We'll be taking a 17.5 lakh crore loan, but out of that we will be paying 28 lakh crore 10.8 lakh crore as interest repayments. So जो कि डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है. Right guys? So it is purely on the belief कि आने वाले समय में जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्सेस ज्यादा आएंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, everything is going to happen that ways, and you know the revenue receipt or the tax receipts will increase, right? But the good part is 21-22 में जो एक्चुअल टैक्स रिसीप्ट है वो 18 लाख करोड़ है, वहां से बढ़कर कितना हो गया 23 लाख करोड़. So 18 से 23 lakh crore. 18 से 23 lakh crore. What is the increase? 5 upon 18. So 1 by 18 is 5.55 into 5. The increase is 27.5%. In how many years? 2 years. 21, 22, 22, 23 and 23, 24. 2 साल. Yes or no? 2 साल में. लेकिन जीडीपी 2 साल में कितनी ग्रो हुई है? कितनी ग्रो हुई है? The GDP has grown by last year it grew at a rate of GDP last year grew. क्या हो गई? Yeah. Okay. Last year GDP grew at 8.70%, largely because there was a decline in 2021 and this year it is expected to grow at 7%. 6.9% is what we say. Yes or no? तो ये 8 और 7% का सक्सेसिव भी लगाएंगे तो 16% आएगा. तो जीडीपी 16% ग्रो हो रही है, लेकिन टैक्स कलेक्शन 27% ग्रो हो रहा है. Yes or no? This is called tax buoyancy. When the rate of collection of tax is more than the growth in the GDP, इसका मतलब हमारे टैक्स बहुत एफिशिएंट है, हमारे टैक्स सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है. जीडीपी इतनी ग्रो ही नहीं जितने टैक्स की कलेक्शन हो गई. वैसे तो जितना जीडीपी होना चाहिए उतना टैक्स होना चाहिए ना, यस और नो, बट जीडीपी कम परसेंटेज से ग्रो हो रही है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा परसेंटेज से ग्रो हो रहा है. So this is called tax buoyancy, right? And this is what every government would want to achieve. Got that, guys? See, India is not largely dependent on other countries except for fuel. तो वो भी अब ईवी आ गया है, ग्रीन आ गया है, काफी कुछ राइट, हाइड्रोजन की बात करी है इस बार इन्होंने. सो दैट डिपेंडेंसी इज देयर. अपार्ट फ्रॉम हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन इतना बड़ा है कि वी आर नॉट बाय एंड लार्ज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इकोनॉमी. तो जब कंट्री की एक्सटर्नल पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब दिक्कत है. मोर ओवर दिस इज ओनली अ 5.9% ऑफ जीडीपी. This is only a 5.9% of GDP. So which is like nothing. तो nothing तो नहीं है, होना चाहिए तो 3% के आसपास. But looking at the condition in the last 3-4 years due to pandemic and so many social welfare schemes being pumped in, so much money has been pumped into the economy, bringing down the interest rates. That's the reason why economy boomed. That's the reason why stock exchanges, stock prices increased. So you need to understand. देखो जैसे ही 2020 में पैंडेमिक आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई, लेकिन स्टॉक मार्केट बढ़ा. क्यों? क्योंकि देयर वाज अ फ्री फ्लो ऑफ मनी, चीप मनी एंड डियर मनी. कंसेप्ट बताया था ना मैंने. तो यूएस में भी वही सेम फिनोमेना था. तो बहुत ज्यादा पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया, तो काफी सारा पैसा, तब इंटरेस्ट रेट कम हुए, मनी हुआ चीप, तो बैंक से निकाल के कहां पर इन्वेस्ट किया? डेवलपिंग इकोनॉमीज, ब्राजील, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम. तो यहाँ की इकोनॉमीज बहुत मैसिव तरीके से, इकोनॉमीज नहीं, स्टॉक मार्केट्स बूम हुए. अब सब भाग गए, 10 टाइम्स हो गए. अब सिंस मनी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन हाई हो गया.
इन्फ्लेशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बोथ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई. व्हाट इज डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई? होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस. तब ये दोनों बहुत ज्यादा हो गया. श्रीलंका में 17-18% हो गया, यूएस में 12-13% हो गया, इंडिया में 10-11% हो गया कंसिस्टेंटली. तो अब इसको चेक करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ाएगा, बैंक रेट बढ़ाएगा. तो मतलब चीप को क्या करेगा? डियर करेगा. तो अब जब डियर करा 7.5%, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे? वहां से निकालेंगे और यहाँ पर पैसा डालेंगे. जैसे ही वहां से निकाला सेल करेंगे तो मार्केट्स. ये सुनो, what's happening to Adani is a different thing altogether. It's a different thing. It has nothing to do with the people who have invested the money thinking that the Adani Group companies would grow, right? Because the Hindenburg report, so they pointed out lot of laxities, lot of problems. और है भी, मतलब ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है. ट्रांसमिशन का शेयर 490 के पी मल्टीपल पे चल रहा है. सर मैंने अडानी पावर लिया था, उसके नेक्स्ट वीक देखा तो इट वेंट डाउन बाय 50% ऊपर हो गया. 50% ऊपर, 3-4 दिन में अभी 50% डाउन है. So let me explain this. नहीं, अभी नहीं, पहले. Okay, silence. Let me explain this. What is PE multiple? Guys, ये clear हो गया? अच्छा, इसमें बस एक चीज और देखते हैं, फिर हम go to the next screen. ये इंटरेस्ट पेमेंट 10.8 लाख करोड़. ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. सो ये ग्रांट इन एड ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल एसेट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट which is 10 lakh crore. So what is the how much is the capital expenditure that they have given to infrastructure? 10 lakhs. 10 lakh 3.5%. 10 lakh crore, which is 3.3%. 3.3% of GDP, right? So 10 lakh crore. ये लास्ट ईयर कितना था? 2.9. ये लास्ट ईयर था 7.5 लाख करोड़, और अभी तक इन्होंने 7.2 लाख करोड़ खर्च करा है. रिवाइज एस्टिमेट थोड़ा कम हो गया है. तो लास्ट ईयर 7.5 लाख करोड़ दिया था इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इस बार बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख करोड़. दिस इज 10. तो 7.5 से 10 लाख, 33% का इंक्रीज. सो रादर देन, इसमें से ये भी तो कर सकते थे 1 लाख करोड़ कम करके सब्सिडीज दे दो, किसी को प्लीज कर दो, 60,000 करोड़ का लोन माफ कर दो किसानों का. They did not do that. They said, let's invest more on infrastructure. Let's build. गति शक्ति को और शक्ति देते हैं, और गति देते हैं. Let's build the projects. And she quoted lot of projects जो कि टाइम से पहले कंप्लीट हो गए, कमीशन हो गए, कंप्लीट हो गए, and they're already working. In fact, ये जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है, which will reduce the time from देहरादून to Delhi to 2.5 hours, इसका जो मोहन पे टनल वाला काम है, ये 18 महीने में होना चाहिए था, इसे 12 या 13 महीने में निपटा दिया उन्होंने. मेट्रो कहाँ पर है? मेट्रो इज कनेक्टिंग दीज 3 cities, देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश. These 3 cities, right? So projects, what? चाइना ग्रो कैसे हुआ? कोई भी, साउथ कोरिया ग्रो कैसे हुआ? यूएस ग्रो कैसे हुआ? यूरोप ग्रो कैसे हुआ? Infrastructure. The key is infrastructure. If your infrastructure is great, right? If it is a hassle-free travel between one city to the other, right? The business increases. Bombay, Mumbai, Delhi, every 15 minutes there is a flight, right? Beijing, Shanghai, every 2 minutes there is a flight. Every 2 minutes there is a flight. Okay. If you go to Mumbai airport or you go to Delhi airport, you will find 12 conveyor belts. जहाँ से सामान आता है, conveyor belts. 16 होगी. Shanghai, it is 100 plus. Beijing, it is 80 plus. Right? So yesterday I was sitting with someone. So they do trade from China, right? They belong to Delhi. So तो बहुत 20 साल से import कर रहे हैं, 25 साल से import कर रहे हैं. So they have their offices set up there. So this guy said, video call पे सारा काम चल रहा है. They have the established offices. So this friend of mine, they play badminton. So इसने अपने वहाँ पर ऑफिस के co-workers को अपनी बैडमिंटन कोर्ट की फोटो भेजी. तो जहाँ पर दिल्ली के 4 बैडमिंटन कोर्ट, 4 कोर्ट, उसकी फोटो भेजी. कह रहे ये क्या है? What is it? बच्चा सा. उसने अपनी भेजी. एक फ्लोर पे 100 बैडमिंटन कोर्ट, एक फ्लोर पे, और 4 फ्लोर है. तो चाइना सारा काम बहुत मैसिव होलसेल में करता है, बहुत मैसिव होलसेल. बिल्डिंग्स गेट रेडी. 127 माले की बिल्डिंग शेंजन में, आई रिमेंबर व्हेन आई विजिटेड, right, got ready in record a year and 2 months. Record year and 2 months. 127 माले मतलब you can imagine हर 5वें दिन एक
एक फ्लोर ले कर रहे हो हर 5वें 6वें दिन, दैट्स हर चौथे दिन दादा, दैट्स द स्पीड दैट दे हैव एंड इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. So you just mentioned 3 lakh crore का एक 3 लाख क्या? इन कैपेक्स से पहले वाला पॉइंट. अच्छा, केपेक्स इज 10 लाख करोड़, जिसमें से 3 लाख करोड़ ये ग्रांट्स इन एड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टेट गवर्नमेंट. तो इस बजट में निर्मला सीतारामन एफएम ने ये बोला कि हम कुछ एड देंगे स्टेट्स को फॉर फिनिशिंग द कैपिटल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वेल विद इन टाइम on the basis of the expenditure, not on the basis of the project, but on the basis of actual expenditure that they will be doing. तो उस 10 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ स्टेट्स के पास आएगा. तो अगर उत्तराखंड स्टेट लेट्स से ये देहरादून मसूरी रोपवे का काम निपटा देते हैं, so they will get a grant. If it is a part of the state project, if it is a part of central project, then it is a part of this particular 7 lakh crore. But if it is a part of state, then they will be getting a grant. So जल्दी करना है. So they are focusing on do it at a fast speed. देरी का काम नहीं, right? So guys, so effective capital expenditure हो गया, revenue deficit और ये सब deficit हो गया. इसमें जो सबसे important है वो हमें ये देखना है 5.9%, which is 17,868, which they will be borrowing in other liabilities. Got that guys? ठीक है? Is that clear? Yes, sir. ये तो बहुत काटा पीटी हो गई है, but then have you understood what I have said? Yes, sir. What is the size of the budget this year? 45. इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कितना जाएगा पैसा? राइट, रेवेन्यू टैक्सेस से रेवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड है? 23 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्सेस, राइट, बट टोटल रेवेन्यू इज 26 लाख करोड़, 26 lakh crore. And if this falls in place, the expected GDP next year is going to be 301 lakh crore, right? Which will be the fiscal deficit would be 5.9% of the GDP, and this current year it is 6.4%. Brilliant, very good. ठीक है, यही है बजट, इससे ऊपर कुछ नहीं है. Okay, now this PDF is already shared with you guys, so now we are moving on to some other points which you wish to remember. So the FM started off with a speech. Okay, guys, she said this marks the start of Amrit Kal. And Amrit Kal is based on Sat Saptarishi, and she said 7 priorities is what the government has. Reaching the last mile means welfare of the tribals and the people who are there in the far northeast, Odisha, Chhattisgarh, and all that stuff. Youth power. So how would you increase the youth power? So they announced a lot of schemes, including Pradhan Mantri Vikas Kaushal Yojana 4.0. अभी तक जो ये कारपेंट्री, प्लम्बिंग और बाकी सब चीजें सिखा रहे थे, now within this 4.0 they want to teach mechatronics, they want to teach AI, they want to teach machine learning, they want to teach coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, Internet of Things, 3D printing, drones and soft skills. That's the way they want to upgrade. Okay, वो हो गया. अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, new age courses like coding, so you have to write this down, right? Because this is something which is more relevant to you. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अमृत पीढ़ी में यूथ पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस अमृत पीढ़ी में यूथ पावर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं PMKVY के, अगर आप देखोगे, ठीक है. उसमें क्या है, यू जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर फ्री. Who will fund? And how will government pay these guys who are running this course? When you get placed. So जिस समय आप रजिस्टर करोगे तब कुछ 15 या 30% पैसा आता है इन पे, फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब 30% आता है, और रिमेनिंग का 30 या 40% आता है जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है. Government will pay directly to the people who are running it. Now this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, and they said now the focus would be on a new age skills, which I just told you, which includes coding, AI, robotics, mechatronics,
IoT, 3D printing, drones, and soft skills. Right. IoT. Internet of Things. What is Internet of Things? सर उसके बाद IoT के बाद 3D printing, drones technology and soft skills. ये सिखाएगा. Okay, इनको एक एक करके करते हैं. So while you were talking about the budget, you would say the FM focused on. She said it's a 2023 will mark a start of the Amrit Kal, and this Amrit Kal will be based on Saptarishi, which includes reaching the last mile, infrastructure सब में आएगा ही आएगा, green सब में आएगा ही आएगा, youth power, which includes ये चार चीजें बोलिए. If you're not able to remember inclusive development, unleashing the potential, Saptarishi, which includes green energy ध्यान रखना, youth power ध्यान रखना, infrastructure याद रखना, reaching the last mile or any one of them, financial sector. what is reaching the last? Hmm? Reaching the last prize. Reaching the last mile. Who's the सबसे पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान में, सबसे पिछड़ा हुआ? Tribals. People who are living, far below subsistence level. जैसे ये फिगर्स थी पहले. उत्तराखंड में करीब 14 लाख लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन जैसे ही आधार कार्ड बनवाए और अंगूठा लगवाने के लिए बुलाया, 9 लाख लोग साफ हो गए. थे ही नहीं वो. हाँ वो कागजों में वो थे ही नहीं, वो कागजों में थे. लोग उनके नाम का पैसा ले रहे थे. एंड दिस ऑल हैपेंड इन 2009 to 2014. सो बहुत स्लोली व्हाट मोदी डिड 2015 में 14 में सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए. 48.3 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपनड अंडर जनधन. सबको पहले फाइनेंशियली इंक्लूड किया, बैंकों तक पहुंचाया. एवरीवन दे गॉट टू द बैंक्स. अगर आप अपनी हाउसमेट से बोलो, आज से 7 साल पहले वो बैंक में उसकी हिम्मत नहीं होती थी बैंक में जाने की. नाउ शीज मनी इज देयर, चाहे 7,000 है, चाहे 5,000 है, चाहे 12,000 रुपए इन्वेस्टेड है, बट है बोली गूगल पे राइट. हाँ, काम वाली क्या, सब्जी वाले क्या, ठेली वाले क्या, everyone. So the kind of a financial inclusion that has happened in India, it is unprecedented, absolutely unprecedented. Thanks to Bharat Pay, thanks to Paytm, thanks to all these organizations which have made it very very simple. No matter they are running in losses, but इन्होंने financially सबको include किया. Google पे तो बहुत बात आया, right? Okay. So guys, ये सप्तऋषि ध्यान रखने हैं. Okay. Now this is सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सबसे पहला सप्तऋषि इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सबका बस मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, बिकॉज बहुत ज्यादा डीप में जाने का फायदा नहीं. विल गेट कंफ्यूज. आपको सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड बजट की बात करनी होगी इंटरव्यू में, राइट? ओके. सो एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर, मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर. फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिस इज 186 लाख करोड़. 186 लाख करोड़. सो जो फार्म लोन्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो बढ़कर वो पहले थे 158 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में. दिस इज गॉन टू 186 लाख करोड़. ऑलराइट. नाउ सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड फॉर एनकरेजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज. सो जो रूरल एरिया का बंदा कोई स्टार्टअप आइडिया लाएगा, उसको ये एक सेटअप, एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप करेंगे और ये उसी को मिलेगा. ये शहर के बंदे को नहीं मिलेगा, ये गांव के बंदे को जो कि अपना स्टार्टअप करना चाहता है उसको ये पैसा मिलेगा. राइट. ओके. नेक्स्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द सेकंड सप्तऋषि, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इंडिया में करीब 1000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं. उसमें से 157 मेडिकल कॉलेजेस में के साथ में ये 157 नर्सिंग कॉलेजेस बनाएंगे. राइट. सो ये वो चीजें हैं जो आप रिकॉल कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर. राइट. ओके. इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किलिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. एजुकेशन में क्या किया? सो अ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. राइट. Pointers, just write the pointers, nothing more. Okay.
now the increase in expenditure on health and education. So अगर हम HDI की बात करते हैं, Human Development Index, that is based on three things: economy, health, and education. Right? So this is education पे financial year 23 में 2.9% of the GDP is going to education, and health पे 2.1% of the GDP. So 2.9% on education and 2.1% of health. तो अब कोई बात कर रहा है जीडी में, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपने डेटा मार दिया, क्या डेटा मारा? The outlay in the union budget on health is 2.1% and on the education is 2.9%. What is more important? So you can just put this point across. So increase in expenditure on health and education percentage of GDP, it is now 2.9%, which is education, and this is 2.1%, which is health. Okay. Now, so these are like clean drinking water. These are other points which she talked about. 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं 102 करोड़ लोगों को, राइट? दिस इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट. 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमने उज्ज्वला दे दिए हैं. 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू द रूरल हाउसेस. 44.6 करोड़ persons under PMSBY and PMJJY, right? This is प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना and प्रधानमंत्री जन जीवन योजना. वो 12 रुपए और 248 रुपए जो अकाउंट से कटते हैं, या 348 रुपए जो अकाउंट से कटते हैं. 2 लाख का इंश्योरेंस है और एक और डेथ इंश्योरेंस है, राइट? नाउ कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान and 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपनड अप. सर ये सब 23-24 में होगा? नो ये 23-24 में होगा नहीं, ये हो चुका है अब तक का, ये अचीव कर चुके हैं. ये दिस इज ऑलरेडी अचीव. ओके. Now, as per these guys, they say that the urban unemployment rate is at 4-time low, which is 7.2%. Urban unemployment rate is at a 4-year low. Yep. Okay. Sir, urban unemployment rate is 8.6. 7.2 तो all over country का है. 7.2 all over country है. Urban is 8.6, rural is 6.5%. So, bhai, this is the government data. Urban unemployment rate is at an all-time low in the last 4 years, 7.2%. ये सीधा पार्लियामेंट से निकल कर आया डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से. सर 7.2%. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ, सर 7 भी बोल देंगे काम हो जाएगा. हाँ. No one is bothered about 7.2. हो जाएगा यार. बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है? Okay. So if you're talking about inclusive growth, so if you're talking about pani, you'll be talking about agriculture, you'll be talking about insurance, you'll be talking about financial inclusion, Jandhan, you'll be talking about vaccine, you'll be talking about Ujjwala Yojana, you'll be talking about toilets. 11.7 crore toilets have been constructed under Pradhan Mantri Swachh Bharat Mission, not Pradhan Mantri Swachh Bharat Mission. मतलब 11.7 करोड़ टॉयलेट्स, इमेजिन. तो 11.7 करोड़ कम से कम 50 करोड़ पॉपुलेशन को तो कवर करेंगे. एक टॉयलेट में 5 लोग भी गए, 50 करोड़ लोगों को कवर करेंगे. मतलब ये थे ही नहीं है, तो कहाँ जाते थे? ओपन. इमेजिन कितना ज़्यादा ओपन डेफिकेशन कितना ज़्यादा था हिंदुस्तान में. इट वाज बैड, राइट? इट वाज पैथेटिक. So guys, moving on. The next Saptarishi, reaching the last mile. Pradhan Mantri PVTG Development Mission. What is PVTG? What is PVTG? Particularly vulnerable tribal group. It is particularly vulnerable tribal group. ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से हैं? ये जो चिकन नेक से ऊपर हैं, ये बांग्लादेश से जो कनेक्टेड हैं, राइट? जो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. सो दिस इज दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज व्हाट दे आर टारगेटिंग. एनीवेज, आई डोंट थिंक सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I don't think so. This is very, very important, right?
So infrastructure. Now, आप फिस्कल डेफिसिट के बाद बात करोगे सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें 3 पॉइंट्स मोटे मोटे बोलने हैं. One is the fiscal deficit, which I already explained you in detail. Second that you could talk about is the Saptarishi. The focus is on Saptarishi, including youth power, green, infrastructure development, and financial inclusion. Right? This is what you're going to talk about. उसके बाद वहाँ से आ जाओगे किस पे आप? Infrastructure. So infrastructure में लास्ट ईयर 7.5 लाख करोड़ का आउटले था, इस साल वो बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया, which is a whopping 33.4% increase. सर 50 एयरपोर्ट्स भी हैं. 50 Yeah, एयरपोर्ट्स से अब इसमें अब बात आती है कि 10 लाख करोड़ खर्च कहाँ होंगे. So ports 50, airports, heliports, right? 2.4 lakh crore to railways, which is the highest ever. ठीक है, अब वो सारी चीजें आ जाएंगी. So you can write that down. We'll talk about that. So जैसे incentives to boost investments in infrastructure and productive capacity, which has a multiplier effect, rise in growth and employment. Right? Okay. Now they're saying continuation of 50-year interest-free loan to state governments to incentivize infrastructure investments. तो स्टेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे. राइट? हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज. तो 10 लाख करोड़ में 2.4 लाख करोड़ कहाँ जाएगा? रेलवेज. अच्छा, नाउ लुक एट द एफिशिएंसी. इंडिया हैज बीन टॉकिंग अबाउट द बुलेट ट्रेन्स. यस और नो? सो फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई दे वांट टू बिल्ड इट. अभी तक क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन का हो रहा है. राइट? प्लस इट्स अ वेरी हाई ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट. चाइना ने पिछले 3 साल में 150 हाई स्पीड ट्रेन खड़ी कर दी पिछले 3 साल में ड्यूरिंग द पैंडेमिक. 150 ऐसे रूट खड़े कर दिए. But the speed is not as good as a 280, 300, 150 to 170 kilometers per hour. So ये कौन सी ट्रेन है अपनी? ये अपनी ये वंदे भारत. हाँ, वंदे भारत की एवरेज स्पीड कितनी है? 130. So वंदे भारत कितनी चली है? अब 500 चलानी है. अभी 8 लॉन्च हो गई है. 8 हुई है, 500 चलानी है. Okay, guys. Now, another important thing, unleashing the potential trust-based governance, make AI in India to work for India. Make AI in India and make AI work for India. Right? The focus is on that. Okay. Now, phase 3 of e-courts to be launched. So अभी क्या है, बहुत सारे cases pending हैं. So they brought out certain policies in the last 2-3 years, right? And taking it further, e-courts का phase 3 is what they are launching with an outlay of 7,000 crores. With an outlay of 7,000 crores. Okay. क्या करेंगे उसके लिए? They will be setting up 3 AI centers in 3 chosen top institutions of the country. So probably 3 IITs is what they will choose. और हाँ, अभी नाम नहीं आया उसका. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लैब ग्रोन. अच्छा, हो गया है. So 3 top institutions is what they will choose, where these 3 centers will be purely working on AI, right? To support agriculture, health, development of sustainable cities. And this is a measure of make AI in India and make it work for India.
Right. Okay. So I think you have R&D grant for lab grown diamonds, LGD sector, and for this you are saying that they are already. So what is MSME? Micro, small, medium enterprise. So by and large, Indian economy is if we talk about the industry, so the maximum contributor is MSME. So इसका support बहुत जरूरी है, right? So विवाद से विश्वास, इनको कैपिटल देना, स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमईज, इसके अलावा गवर्नमेंट जो एमएसएमई से काम करवाएगी या कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो एमएसएमई से काम करवाएगी, उनको एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे कुछ टैक्स रिबेट्स मिलेंगी, राइट? दैट्स टू टेक्निकल. नाउ ग्रीन ग्रोथ. Okay, so within the green growth, 500 new waste to wealth plants. 500 new waste to wealth plants. So they've named it Gobardhan. Gobar se converting gobar into basically boosting the circular economy, right? So 500 waste to wealth and sustainable ecosystem development, wherein they said Mishti to be taken as a mangrove plantation along the coastline, right? But this is very, very specific. I don't think so. You should be able to recall this, and you will be able to recall this and say it. But this is what they've done. Now, सबसे important, youth power, Amrit PD. So this is one. सप्तऋषि में से एक था youth power. I have already told you PMKVY, that प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 will be launched, covering the new courses like coding, artificial intelligence, robotics, 3D printing, mechatronics, drones, and soft skills. Okay, measures to boost tourism sector. At least 50 destinations to be selected through challenge mode to be developed as a complete package for domestic and foreign activities. तो 50 जगहों को चूज करके वहाँ के म्यूनिसिपल को या the people who are the MLAs or the MPs or the social groups or the self-help groups, they will be challenged to create that infrastructure, public infrastructure, into a tourist attractive infrastructure, right? So that more and more tourism gets attracted. कैसे होगा वो? घर को होम स्टे बनाओ, जनता आएगी तो रहेगी ना कहीं, जगह को साफ रखो, राइट? बिल्ड सर्कुलर इकोनॉमी और कुछ ऐसी चीजें बनाओ वहां पर जिससे कि जनता आकर रुके. सो ऑन अ चैलेंज मोड. सो दिस, इसकी क्लैरिटी और आनी है, बट देन दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली न्यू इन द बजट. At least 50 destinations to be selected through challenge mode to be developed as a complete package for domestic and foreign tourists. They will be given this particular challenge. So the way जैसे ये हो रहा है ना, cities का clean सर्वेक्षण जो हो रहा है, वो क्या challenge mode ही तो है और क्या है? पैसा थोड़ी आ रहा है. So they are doing the survey and figuring out which city is the cleanest city in India. Indore and Bhopal are bagging the prize for the last 6-7 years. Every year they are number one. And now Gwalior is also added to the list. Dehradun has gone down. Dehradun safety में. Okay. All right. Now, this is financial sector. Financial sector. So last among the Saptrishi. Guys, इसमें जो सबसे important चीज है, benefits for senior citizen. So there is a senior citizen saving scheme, right? So what they did, इन्होंने बोला जितने senior citizens हैं, senior citizens normally आपने पैसा कमाया till the age of 60, you got retired, you have got that saving. Now you do not want to risk that money. You do not want to invest into markets. So you will keep that money into the banks and would want to earn rate of interest, a higher rate of interest. तो senior citizen की जो earning है वो कहाँ से आती है? Either the pensions, if at all they were state or central government employees or PSU employees, or from the money that they have earned, they have invested, वहाँ से पैसा आएगा. लेकिन during the last 2-3 years, when the money became cheap money, the rate of interest has fallen. तो जिस बंदे का, let's say अगर कोई senior citizen है, उसका 1 करोड़ का deposits है
और उस पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है या 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, सो ही इज अर्निंग 8 लाख ऑफ रुपीज पर annum and they are living good life, but rate of interest has fallen down to 5.5% during the pandemic. तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5.5 लाख. So how will a senior citizen make sure the two ends meet? So what they did, 2 साल पहले इन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बनाई, जिसमें इन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बनाई, एक स्पेशल खाता बनाया बैंक में कि 15 लाख रुपए इन्वेस्टेड इनटू दिस, राइट, दे विल अर्न अ 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, irrespective whether the rate of interest in the market is 4.5 or a 5 or 5.25. So उसको इंसुलेट कर दिया कि 7.5% हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे. ये जो 15 लाख की लिमिट है इसको बढ़ाकर 30 लाख कर, got that guys? इसको बढ़ाकर 30 कर दिए, right? That's one. So enhanced maximum deposit limit for senior citizens saving scheme from 15 lakh to 30 lakh, right? Okay, this is credit guarantee for MSME. Again, very technical. Leave it. One-time new small saving scheme for a 2-year period with a deposit facility of up to 2 lakh for women. इसमें भी rate of interest higher होगा, right? 7.5 होगा. So जैसे को कौन सा खाता, there's a particular account that you could open if you've got a girl child from 2 years to सुकन्या. So उसमें भी rate of interest higher है. तो अभी इन्होंने एक स्पेशल स्कीम बनाई है जिसमें आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, 7.5% मिलेगा. वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2-year पीरियड एंड 2 लाख रुपीज मैक्सिमम इज व्हाट यू कुड गिव. तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट को क्या करना है, 7.5 लाख करोड़, गवर्नमेंट को 7.5 लाख करोड़ क्या 17.5 लाख करोड़ क्या करना है, बोरो करना है ना. कैसे बोरो करेगी? यूजिंग दी स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, यहाँ से आएगा पैसा. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 7.5%, ये सुनो नॉर्मल 6 है, इसमें 7.5 है, 2 साल में पैसा ले लिया. So that's how they push the investments, savings, and that's how this money goes back into the development of the economy. All right. So Gift City setting up a central data processing center for faster handling of administrative work under the Companies Act. This is again technical. छोड़ो इसे. Right. Okay. Now. Fiscal consolidation, we've already done this. 25-26 तक 4.5% is what they are saying. Election होंगे 24 में, वो कह रहे हैं 25-26, right? Okay. Now, Indian economy backed by strong macroeconomic fundamentals. Fiscal deficit consolidation is what we've already done. GST. GST जब आया था, तो every month collection was around 80,000 crore. It went up to 1 lakh crore. Right, in the month of April, this figure went to 1,70,000 crore. I'm talking about the GST collection per month, right? So अभी दिसंबर में this is 1.5. तो अभी ये 1.5 on an average हो गया है. तो हर साल GST से कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है? 1.5 lakh crore. But ये 1.5 into 12 तो 18 हो गया. 18 लाख करोड़ हो गया. बट टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है? 21 या 22 लाख करोड़, जिसमें 23 लाख करोड़, जिसमें से इनकम टैक्स भी है. बट 18 लाख करोड़ ये फिगर क्यों है? और इनकम टैक्स भी 11-12 लाख करोड़ है. SGST. तो इसमें से ये टोटल कलेक्शन है, इसमें से SGST किसके पास जाएगा? स्टेट के पास. IGST का 40% जाएगा. IGST उनकी नहीं, उसमें से भी शेयर होता है ना. SGST तो है ही स्टेट का, और IGST से भी 40 या 50% है. 50% है. 5 साल के लिए था ना, वो चल रहा है अभी, खत्म नहीं हुआ. अच्छा 22 तक. नाउ एसेट क्वालिटी देखो. अब बैंक्स ने फाइनेंशियल अगर बैंक ने लोन्स किसके थ्रू, गवर्नमेंट लोन्स किसके थ्रू देती है? बैंक्स के थ्रू. लेकिन जो लोन्स हैं अगर वो बैड हैं, बहुत सारे लोन्स बैड हैं, तो बैंक्स की बैलेंस शीट वुड बी क्रम्बलिंग, राइट? दिक्कत आएगी. तो एसेट क्वालिटी इन बैंक is very important. So asset quality in bank is improving with lower NPAs. So NPA as a percentage of total advances, which was March 20, it was 8.2%. This has gone down to 5%. That's the reason why banks के stocks बढ़ रहे हैं.
क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जो 2008 का क्रैश हुआ था यूएस का, लीमन ब्रदर्स का, क्या था, उसने सब प्राइम लेंडिंग करी हुई थी। सब प्राइम लेंडिंग मतलब खराब कस्टमर्स को लोन दिया हुआ था, किसी को भी लोन बांटा हुआ था, तो जो कि जिसकी रीपेमेंट मतलब द एनपीए वाज एज हाई एज 15 to 20%, राइट? सो दैट एसेट क्वालिटी ऑफ द एडवांसेस is improved and there is only an NPA of 5%, and there are a lot of banks जिनका NPA 2% है, 3% है, 1.8% है, तो उनके शेयर्स पिछले एक साल में 100% बढ़ गए। करूर व्यासा कर्नाटका बैंक 150%, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, द एसेट क्वालिटी इज बैड, 40 से 51 तक पहुंचा है, बस 25% पहुंचा है। वो बैड बैंक्स, वो जो ऑलरेडी एनपीए हो गए हैं उनकी रिकवरी में लगा, दैट्स बैड बैंक। ओके, नाउ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो असेट जिसमें असेट मतलब बैंक का एडवांस, बैंक का लोन, बैंक आपने बैंक से लोन लिया एंड यू आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, तो 3 महीने अगर आपने मिस करी, सो इट विल बिकम एनपीए। 33 months or 90 days, if you do not repay, after the repayment arises, it will become NPA, non-performing asset. और अगर non-performing नहीं है तो क्या है? Standard performing asset. It is a performing asset, which is a standard asset. और जैसे ही non-performing होएगा, उसमें आपको provisioning करनी शुरू करनी पड़ेगी, आपको higher provisioning करनी पड़ेगी, और provision करते ही बैंक से profit कम हो जाएगा, तो as good as उसको default देखना पड़ेगा। बैंक बहुत ही the bank's balance sheet are very pessimistic in the sense कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप उसमें पूरी प्रोविजनिंग कर दो, आप उसे मान लो कि ये नहीं आएगा, आ गया तो गुड इनफ, तो दैट्स द वे दे मूव। ओके गाइस, another important thing, wholesale price index and retail prices index are converging। तो WPI बहुत हाई था, 16% पहुंच गया था जून में, लेकिन दिसंबर में they have settled down to 5%. The CPI and WPI have settled down to 5%. See, wholesale price index and consumer price index. So basically, what is the difference? The name is in itself is telling. Wholesale markets में, मंडी में क्या prices हैं और वहाँ पर क्या inflation है। जो wholesale price में inflation होगी, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद किस में आ जाएगी? Consumer में आ जाएगी। Yes or no? एंड सीपीआई इज द कंज्यूमर। आज अगर आप जाते हो किसी एक पर्टिकुलर जगह और ये 30 प्रोडक्ट और सर्विसेज की आइटम फूड बास्केट ले लेते हो, उसमें कितना बढ़ा, तो लास्ट दिसंबर के बेसिस पे इस साल, मतलब ये दिसंबर, ये ईयर ऑन ईयर है, पहले महीने से नहीं है। सो लास्ट ईयर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 द प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज बाय ओनली 5%। दिस व्हाट इट मींस, दिस व्हाट इट मींस, एंड बोथ ऑफ देम आर कन्वर्जिंग। नो, सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स and WPI is wholesale price index. इससे इन्फ्लेशन पता लगेगा, ये इन्फ्लेशन पता लगेगा, राइट? करेक्ट। हाँ, पहले WPI में होता था, अब CPI हो गया। 2015 तक WPI करते थे, उसके बाद CPI करते थे, राइट? हाँ, यस, व्हाट इज इट? 5.88 कितना दिसंबर में? 5.8, 5.9 on the same thing. Okay. Now, indirect taxes छोड़ो, let's come to this one. The fourth thing that you will be talking about, which everyone is talking about, is direct tax proposals, right? The change in the slabs, the 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, राइट? ये जो स्टेटमेंट था, बट उसमें स्टेटमेंट क्या आया? Only in the tax regime, only the new tax regime. Now, what is that? What is that? 7 lakh. You need to understand this. ये बड़ा प्रैक्टिकल है और काफी इंपॉर्टेंट है, गाइज। हमारा जो, you know, I told you in the previous class also, the economics class that I've taken, income taxes, there are 7 kind of a persons. Individual person का मतलब, person doesn't mean a person. As per income tax, there are 7 different kind of a person. Number 1 is individual. Individual is also person. HUF is also person. LLP is also person. Association of persons and body of individual is also person. Company. Then societies, cooperatives, artificial judicial person. So these are all different entities as per income tax act.
but we are not going that deep. We are simply saying कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल की जो इनकम है उस पर हम टैक्स पे करते हैं. तो पहले एक स्कीम थी, 2 साल पहले एक न्यू टैक्स रेजिम आ गया था, राइट? सो क्या था? देयर इज अ ओल्ड टैक्स रेजिम एंड देयर इज अ न्यू टैक्स रेजिम. नाउ इन द ओल्ड टैक्स रेजिम 0 से 2.5 लाख, अगर 0 से 2.5 लाख की इनकम है तो देयर इज नो टैक्स, इट इज टैक्स फ्री. 2.5 से 5 तो 5% और 5%. लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपए का, और यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स. बट जैसे इनकम 6 लाख हो जाएगी देन यू वुड हैव टू पे द टैक्सेस, राइट? तो 5 से 10 लाख 20%. सर न्यू में भी जीरो था. मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ. लास्ट ईयर न्यू में जीरो था ना. 5 तक तो सही था ना. रिबेट है भाई, वो रिबेट है. भैया इट इज नॉट द 6 लाख पे वो है, वो 5 लाख से नीचे तो वो रिबेट मिल रही है. मतलब पे चेक आएगा वापस या अकाउंट में पैसा आएगा. सो टोटल इनकम, गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा. और आपकी शुरू की 2.5 लाख की इनकम, मुकेश अंबानी की भी टैक्स नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी. अगर किसी की टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उसको पूरा का पूरा रिबेट मिलके उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन जैसे ही 5 लाख को क्रॉस करती है, 6 लाख होती है, तो उस पर पूरा 2.5 लाख तक टैक्स फ्री, और 2.5 लाख से 5 लाख तक एक पर्टिकुलर रेट, और 5 लाख से आगे एक पर्टिकुलर रेट पे टैक्स हो जाएगा. तो 5 से 10 लाख था 20%, एंड अबव 10 लाख 30. Above 10 lakh was 30%. This was the old tax. New tax regime में इन्होंने 0 to 2.5 was 5%, was 0. 2.5 से 5 is 5%. 5 से 7.5 लाख is 10%. 7.5 से 10 15%. 10 से 12.5 20%. 12.5 से 15 25%, एंड 15 एंड अबव 30%. ठीक है, लेकिन इस वाले रेजीम में बहुत सारी डिडक्शंस वर स्टैंडर्ड अलाउड. लॉट ऑफ डिडक्शंस वर अलाउड. सो व्हेन यू इन्वेस्ट, you make an insurance premium, you may pay for insurance, you pay for your health policy, right? You do a NPS, National Pension Scheme, और भी बहुत सारी और पॉलिसीज थी. प्रोविडेंट फंड में जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सब 1.5 लाख तक और एक्स्ट्रा 50,000 तक, मतलब अप टू 2 लाख रुपीज वो टैक्स फ्री, मतलब वो डिडक्शन हो जाता था. प्लस एवरी सैलरीड गाय यूज्ड टू गेट अ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन. एवरी सैलरीड गाय यूज्ड टू गेट अ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि स्कीम में नहीं था. और 50,000 रुपए का डिडक्शन ये हो जाता है. इसका मतलब अगर 7.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, एंड यू आर अ सैलरीड गाय, नॉट फ्रॉम बिजनेस, यू आर अ सैलरीड गाय, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई 7 लाख, और आपने स्मार्टली 1.5 लाख की इंश्योरेंस ले लिया, प्रोविडेंट फंड ले लिया, राइट? या कुछ ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया विच आर एलिजिबल अंडर 80C, तो 1.5 लाख रुपए वो लेस हो गया. स्टॉक मार्केट. ये सुनो, आपने 50,000 रुपए का NPS ले लिया, वो लेस हो गया, राइट? और आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 10,000 रुपए का, वो लेस हो गया. तो 2,10,000, ये कितना हो जाएगा? 4,90,000, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा. तो 7.5 lakh rupees would simply get a tax free. No taxes what you've been paid, right? So whatever company deducts, you will get it back. Got that, guys? समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? राइट? देखो, जिसको अगर आ गया, and in an interview you could explain this, the change, and you could actually explain this, you are through. कोई भी इंटरव्यू you are through. You are 100% through. Guys, अब ये था लास्ट ईयर, बट ये जो न्यू टैक्स रिजीम था, सिंस इसमें लोअर रेट्स थे, तो FM ने बोला था कि हम कोई भी डिडक्शंस नहीं देंगे, और ये ऑप्शन दे दिया
टैक्स पेयर को कि आप चूज कर लो जो भी आपको बेनिफिशियल है वो कर लो, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ बोलती कि एक बार अगर आप न्यू टैक्स रेजिम पे आ गए तो आप वापस ओल्ड पे नहीं जा सकते. सो इधर यू कंटिन्यू विद ओल्ड और यू पिक अप द न्यू रेजिम, बट यू कैन नॉट एक साल में ये कर लिया, एक साल ये कर लिया, जिस साल मुझे जो बेनिफिट हुआ वो नहीं. वंस यू हैव शिफ्टेड टू न्यू टैक्स रेजिम यू विल गो इन दैट. So last 2 years, not much of the people shifted to new tax regime. So what they did this year, old tax regime को उन्होंने नहीं छेड़ा है. Old tax regime को नहीं छेड़ा है, but new tax regime में इन्होंने बोला 0 से 3 लाख no tax. 0 से 3 लाख no tax. मतलब एक तो जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 बढ़ा दी, लेकिन किस में बढ़ाई? सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं बढ़ाई, वो भी 2.5 लाख है, राइट. फिर 3 लाख से 6 लाख, अब ये बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 को कम करके इन्होंने 3 to 6 कर दिया 5%, 6 to 9 कर दिया इन्होंने 10%, 9 to 12 कर दिया 15%, 12 से 15 कर दिया 20% और 15 एंड अबव कर दिया 30%. और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फॉर सैलरी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिस सिस्टम. ठीक है. और अगर किसी की इनकम सैलरी से 7.5 लाख रुपए, तो 50,000 का उसे क्या मिल गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसकी इनकम कितनी हो गई? 7 लाख. उसको न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन तो कोई नहीं मिलेगा, और ये बोल दिया 7 लाख इज टैक्स फ्री. 7 लाख इज टैक्स फ्री. ये चेंज है. गाइस, सो बेसिकली जिसकी इनकम पहले 7.5 लाख थी उसको 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी. अब जिसकी 7.5 लाख की इनकम है फ्रॉम सैलरी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख रुपए बचे. इवन इफ इट डज नॉट इन्वेस्ट इन दो स्कीम, हिज इनकम इज टैक्स फ्री. दिस इज द चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट अप. नहीं मिलेगा, है ही नहीं. न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन है ही नहीं, नो डिडक्शन. तो यही तो है न्यू टैक्स रेजिम. नहीं तो अगर सो ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. जिसकी इनकम 7.5 लाख है उस पर टैक्स नहीं हुआ, लेकिन जिसकी इनकम 10 लाख है, लेट्स से गाइस शी इज सेइंग कि सर आप बोल रहे हो 0 से 3 0 है, 3 से 6 5 है, और ये यहाँ पर तो आपने लगाया नहीं. तो देखो 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो गया, बट अगर इसकी इनकम 10 लाख होती, 10 लाख होती, तो 50,000 रुपए लेट से डिडक्शन है. अब 9.5 लाख में 9.5 लाख में जो पहला 0.3 है वो हो गया 0 टैक्स. 3 से 6 पे कितना है? 5%. तो 3 से 6 मतलब 3 लाख का 5% 15,000. 6 से 9 3 लाख का 10% 30,000. और बचा कितना? 50,000. 9 लाख का हो गया 50,000. 50,000 का 15%, 50,000 का 15% कितना हो गया? 7,500. सो बेसिकली द टैक्स लायबिलिटी विल बी 45 प्लस 7.5 50, 2,500 प्लस सरचार्ज अलग है. सर अगर किसी की 7,60,000 होगी तो उसको नुकसान है. 7,60,000 होगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा. बिल्कुल. तो वो क्या करेगा? अपनी कंपनी को बोलेगा भैया 7.5 मत कर, तू 7.5 ही कर. So that's where tax planning comes into the picture. So ये as a rebate वापस क्यों करते हैं? लोअर लिमिट इन द फर्स्ट, as a rebate क्यों वापस किया जाता है? लोअर लिमिट इन द फर्स्ट प्लेस देते हैं. रिबेट इसलिए क्योंकि आपकी ये जैसे 7.60 हो गई, 7.50 वाले की 0 टैक्स है, 7.60 वाले का टैक्स बैठ रहा है 20,000. तो 10,000 रुपये इनकम बढ़ी, टैक्स 20,000 बैठ रहा है, तो वो 10,000 रुपये वापस कर देंगे. That's all. ऐसे? No. Okay, guys. Silence. Guys at the back. I think I've lost you. Are we connected? समझ में आ रहा है? या बोल रहे हो 7.5 लाख की इनकम होगी तब देखेंगे सर? हाँ. वो ओल्ड टैक्स रेजिम है. नहीं, ओल्ड टैक्स रेजिम में भी 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है.
वापस आ जाओ। वो तब आप रिटर्न भरोगे तो वापस आ जाएगा. एंड ब्यूटी इज ओके. द ब्यूटी इज वो है सेस खत्म हो गया, सब चार्ज आ गया. हेल्थ एजुकेशन सर्टिफिकेट सब चार्ज आ गया. गाइस देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहले इनकम टैक्स रिटर्न 3-3, 4-4 महीने में प्रोसेस होती थी. अभी 6.5 लाख करोड़. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिवली. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 141 करोड़. ये सुनो, इसमें से कितने लोग हैं जो टैक्स रिटर्न्स भरते हैं? 3%. कितने? 3%. 6.5 करोड़ रिटर्न्स भरी गई हैं. उन 6.5 करोड़ रिटर्न्स में से 6.5 करोड़ रिटर्न में से करीब 4 करोड़ रिटर्न्स टैक्स फ्री भरी गई हैं. 5 लाख से कम, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में भर दिया. ठीक है, भर दिया. ये सुनो, टैक्स फ्री रिटर्न्स भरी गई हैं जस्ट टू क्लेम बैक द टैक्स. तो अब एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज टू 16 डेज इन 8 years. पहले 93 डेज, 3 महीने लगते थे रिटर्न को प्रोसेस होने में, अब 16 दिन लग रहे हैं. और प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स इतनी भरी गई हैं. 45% ऑफ रिटर्न्स ऑफ अ टैक्स पोर्टल were processed within 24 hours. 45% रिटर्न, बेसिकली 45% सारी वो वाली रिटर्न्स है जो टैक्स फ्री रिटर्न्स है. They have been processed within 24 hours. Right? In fact, some tax returns as well. Some tax returns. मतलब मैंने आज रिटर्न फाइल करी है, उसको मैंने ई-वेरीफाई करा, परसों रिफंड आ गया. Within 48 hours रिफंड आ गया. So that's the kind of a efficiency that they have brought in, right? Okay. Now एक और था जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर थी, राइट? उसमें 5 करोड़ से ऊपर थी, उसमें 37% सरचार्ज था. पूरे टैक्स लगने के बाद 37% सरचार्ज. तो 30% का 37% जो लगता था, एवरेज टैक्स आता था 42%. 42%. तो वो अब इन्होंने 37 से रिड्यूस करके कितना कर दिया? 25%. 37.5 हो जाएगा. तो मतलब आप 37.5 हो जाएगा. लेकिन ये जो जनता है ये बहुत ही कम है. मतलब ये रिटर्न्स पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता 1 करोड़ से ऊपर की रिटर्न्स 1000 से ऊपर होंगी. नहीं सर. 50 लाख से ऊपर 4000 रिटर्न्स है इंडिया में. बस 1 करोड़ से ऊपर रिटर्न. हाँ, वो भी आता है. Okay. So guys, I think this is where the rupee comes from. Okay, questions on the old tax regime, the new tax regime, and the changes in the new tax regime. Come on. है कोई change? मतलब है कोई question? Okay. Now this is important. ये आपके पास already है. We have sent this across. मैं फिर से मार्क कर दूंगा. डिफेंस एक्सपेंडिचर 5.94. अब ये किसका लेखा जोखा है? 45 लाख करोड़ कहाँ खर्च होएगा? कौन सी मिनिस्ट्री को कितना लगेगा? पूरा 45 नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है इसमें, केपेक्स अलग है, प्लस 11 लाख करोड़ की क्या है? इंटरेस्ट रिपेमेंट है. ये सुनो, तो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जैसे ये 10 लाख करोड़ का पार्ट है, ये 2.4, ठीक है. 5.94 इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो अगर कोई डिस्कस कर रहा है which one is the most important with a capital, with an outlay of 5.94 lakh crore of the budget. So if we look at this, so defense is 8%. 8% of budget है. 8% of 45 का 8% तो कम हो गया ना. 4.5 where we goes to. अच्छा, फिर इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो अलग आ जाएगा. So guys, Ministry of Defence, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Railways, Consumer Affairs, Home Affairs, Chemical and Fertilizer, Rural Development, Agriculture, and so on and so forth. All you need to remember is this and this. That's it. 4.94 and 2.41, because that's what she used in the statement. Okay. That's what she said. Not needed. That's all. Now,
ये नजर नहीं आएगा चार्ट, ये बेसिकली पूरा एनालिसिस है कितनी इनकम पे और कितने डिडक्शन पे ओल्ड न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम कौन सा बेटर है, और कहां पर दोनों सेम है और किसके बाद क्या है। तो ये प्रैक्टिशनर्स के लिए है। तो ये दिस टेबल यू कैन गो टू योर फादर एंड से पापा व्हाट इज योर इनकम, आप न्यू टैक्स रेजिम में आ जाओ, आप ओल्ड में ही रहो। भाई साहब ये क्या हुआ, ये पास है, कौन सा एग्रीकल्चर, हाँ वो उसको कोई नहीं छेड़ सकता, उसको नहीं छेड़ सकते, राइट। क्या फॉरेक्स रिजर्व्स गाइस, फॉरेक्स रिजर्व विद इंडिया we have got 585 billion. December 22 we have 563 billion USD, जनवरी का 585 हो गया. 585 हो गया, ओके जनवरी 585 बिलियन डॉलर। चाइना the same forex is around 3.5 trillion dollar, 7 times of us, right, 7 times of us। मतलब वो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी 18 है, हमारी 3 है, 6 का मल्टीप्लायर है, सब चीजें 6 की मल्टीप्लायर है, राइट, 6 की मल्टीप्लायर एक्सेप्ट फॉर दी ओलंपिक मेडल्स, राइट, दैट द मल्टीप्लायर इज ह्यूज। 9 months, exactly। So this is sufficient to cover 9 months of imports। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, तो 9 महीने तक कंट्री इज ऑल सेट। ओके, एक्सचेंज रेट 81 पॉइंट समथिंग, 81.50 is the exchange rate। ओके, that's it, thank you। Okay, now, wait। Write down an answer to this question. What is your take on or view on the budget 2023, the union budget 2023? अपना आंसर लिखो, come on, whatever we have done, just write that down। I need those 5-6 statements or 5-6 pointers that you need to put, come on, create your own answer। I'll be sharing this PDF if it all, but जितना interviews के लिए relevant था मैंने बता दिया। अब you want to have more knowledge, then you can deep dive, right? So otherwise it is covered by and large। 7.5 लाख पे टैक्स पड़ेगा।